Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, beta. Good morning. सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. पिछली क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास पर बात कर रहे थे। क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे पिछली बार छोड़ी थी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर हम लोग बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, देयर आर सेवरल पार्टिकल्स in this particular coordinate system x, y, z, and the mass of ith particle is mi. Means there are a lot of particles m1, m2, m3, and so on so forth, mi, and the position of ith particle is ri. So you can write the position of cm of the system of particles. rcm is equal to summation mi ri divided by summation mi. और मैंने इस बात को ऐसे समझाया था कि सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मूवमेंट का सम, वेक्टर सम, अगर एक पॉइंट पर अगर हम सारे मास को सेंटर मतलब रख लें और माने कि ये पॉइंट जो है इन सबका रिप्लेसमेंट है, तो इस पर्टिकुलर सीएम का जो मूवमेंट होगा वो होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन सो फोर rcm. तो अगर ये बराबर हो जाए, यू कैन रिप्लेस दिस एंटायर सिस्टम बाय ए सिंपल पार्टिकल जिसे हम बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास. सो RCM is equal to summation mi ri divided by summation mi, where summation mi is mass of the system. If ri is in terms of coordinates, ri is xi I cap plus by I j cap plus zi k cap, then if you write, if you put it here, and RCM is equal to xcm I cap plus ycm j cap plus zcm k cap. If you put the value of ri and RCM and collect the coefficient of I cap and j cap and k cap, then you can find, यहां तक लिख ले सब लोग, वैसे लिखा हुआ होगा इतना यहां तक, as far as my knowledge is concerned. मुझे जहां तक याद है कि आप लोगों को यहां तक लिखा हुआ था आप लोगों की कॉपी में. चलिए, सो कलेक्ट अगर करें कोफिशिएंट तो आ जाएगा आपके पास xcm is equal to summation mi xi divided by summation mi, ycm is equal to summation mi yi divided by summation mi, and zcm is equal to summation mi zi divided by summation mi. यहां पर एक चीज ध्यान देने की है, व्हाट इज xcm? x coordinate of center of mass. And what is xi? x coordinate of ith particle. तो अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. Here xi is x, मतलब xi, yi and zi are ith coordinate of x, y and z coordinate of ith particle. So never forget it. So if you have extended object, this is for system of particles. मेरी आवाज सभी को आ रही है, क्लियर है ना? Yes, sir. एक्चुअली कुछ Yes, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी क्लास 2 बार गड़बड़ हुई. उसकी वजह थी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था और काफी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए आप लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ी इसके लिए मुझे बहुत दुख भी है. हालांकि मैंने कोशिश भी बहुत की लेकिन नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल अभी जो चल रहा है, अब आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. तो फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ बॉडी, continuous system means for rigid body. If you are talking about continuous system, for rigid body,
just replace rigid body means continuous system of particles, means like this. And if you want to write the expression for center of mass of this rigid body, just take a element, for example like this, and the mass of this element is dm and the position of this element is r. So the moment of this dm is dm r integral. This is the net moment of the all dms divided by integral dm is equal to rcm. मीन्स आपको करना क्या है, जहां जहां आपको mi दिख रहा है वहां पर dm लगा दो, और जहां पे आपको समेशन दिख रहा है वहां पर इंटीग्रल लगा दो, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे एक्सप्रेशन सेम रहेंगे। तो इसके लिए भी जो एक्सप्रेशन रहेगा xcm के लिए हो जाएगा इंटीग्रल mi xi की जगह इंटीग्रल dm xi, इंटीग्रल dm yi, इंटीग्रल dm zi। समझ रहे होंगे आप लोग? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बिकॉज इंटीग्रल इज बेसिकली कंटिन्यूअस सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी आप लोग कंटिन्यूअस सम कर रहे हो वो है। ठीक है, जस्ट राइट डाउन ऑन योर कॉपी। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। So let us talk about center of mass various system of particles or system various continuous bodies. तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग like this. If you have this type of semi circular ring, where is the center of mass of this circular ring? So just for this, the mass of this circular ring is capital M and the radius of this circular ring is capital R. So mass per unit length, mass per unit length of this circular ring is m by pi r. 2 pi r is the total circumference, so half is pi r. So you can use this during calculation. And let us take a coordinate system in which you want to calculate the position of cm. So for example, this is x coordinate and this is y coordinate. आवाज बंद करें यार। ठीक है, चलिए सभी लोगों को म्यूट कर दिया मैंने। हाँ, तो मैं बता रहा था इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन पता लगाना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका वही है कि हमें क्या करना होगा, एक्स वाई मान लिया और हमने इसके क्या किए, छोटे छोटे पीस कर लिए। तो मान लीजिए छोटे छोटे पीस करा तो एक पीस ये आया। इस पीस का अगर मैं ओरिएंटेशन देखूं तो ये वाली जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है, और यहां तक ये थीटा प्लस डी थीटा, मीन्स ये कितनी एंगुलर पोजीशन में फैला हुआ है, छोटा सा डीएम डी थीटा में। तो व्हाट इज द मास ऑफ दिस डीएम, मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट?
तो मास ऑफ एलिमेंट dm is equal to, if this is capital R is the radius of this ring, so r d theta, the length of this element is r d theta. मैं लिख देता हूं, length of this element is r d theta, so lambda into r into d theta. Mass per unit length is lambda, r d theta is the length of the element, so lambda into r into d theta. ठीक है, तो ये तो हो गया dm. अब आपको क्या निकालना है? dm अगर ये आ गया तो आपको पोजीशन निकालनी है cm की, है ना? तो सबसे पहले में x कोऑर्डिनेट निकालते हैं cm का कितना होगा. तो अगर x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो इंटीग्रल xi मींस इस dm का x कोऑर्डिनेट. तो dm का अगर मैं ये x कोऑर्डिनेट देखूं तो r cos थीटा आएगा और y कोऑर्डिनेट देखूं तो r sin थीटा आएगा. तो x कोऑर्डिनेट मतलब xi मींस जस्ट अ मिनट, x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm. तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रल x कोऑर्डिनेट लगाएंगे तो r cos थीटा, dm इज लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, ऑब्वियस है ये इंटीग्रल करने की जरूरत ही नहीं, कैपिटल आर मास इज द मास ऑफ द इंटायर सिस्टम, इंटायर सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग. बस लिमिट लगानी है. थीटा की अगर लिमिट देखें तो सबसे कम जो थीटा हो सकता है इस पूरी फिजिकल इस पूरे रिंग में तो यहां पर होगा. यहां पर अगर देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0. और सबसे अंतिम वाले पोजीशन होगी यहां पर थीटा कितना होगा, पाई. सो 0 to पाई इसको इंटीग्रेट कर दें और हम कैलकुलेट कर लें क्या xcm कितना आएगा. तो जस्ट कैलकुलेट करें आप लोग इस इंटीग्रल को, फटाफट बताएं क्या आएगा. इसको कैलकुलेट करें, बताएं. 0 आया, बहुत सारे लोगों ने बता दिया. और वैसे कॉमन सेंस से भी आप बता सकते थे कि 0 ही आएगा, क्योंकि इस बाई एक्सिस के अबाउट ये बॉडी सिमेट्रिक है तो इसका सबका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा. बाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं होगा तो एक्सियम 0 आना भी चाहिए था. ठीक है, अब रही बात एक्सियम आ गया, वाईसीएम निकालें. So YCM is equal to integral y dm divided by integral dm. So integral again 0 to pi, y coordinate is r sin theta, lambda into r d theta divided by capital M. जरा कैलकुलेट करके बताएं कितना आएगा. भाई आर स्क्वायर लैम्डा ये आ गया बाहर, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, 0 to पाई इंटीग्रल कर दें. सर 2 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2r स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय n. क्या चीज, 2 r स्क्वायर आएगा सर. वो लैम्डा की वैल्यू डालने के बाद बताओ. 2r by pi. 2r by pi. Then it means the coordinate of CM is XCM and YCM. ये कितना आ गया, 0,2r by pi. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के y एक्सिस पर 2r by pi which is less than r. So यहां पर कहीं पर इसका CM होगा, है ना, जिसकी पोजीशन कितनी बताई आप लोगों ने,
ये दूरी कितनी बताई 2r/π। सही कह रहा हूं? यहां तक सही है बात? किसी Yes, को sir. कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। नहीं, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें सब में हम रिजिड बॉडी ही लेंगे? बेटा ये रिजिड बॉडी ही है सारी, जहां पर पार्टिकल्स के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो ना बदले, उन्हें हम रिजिड बॉडी ही कहते हैं। तो रिंग हो गई, रिंग में भी सारे मास क्या है, फिक्स है जहां पर भी है। और नंबर ऑफ Yes, sir. पार्टिकल्स अगर मैं बोलूं तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसमें पार्टिकल आप गिन नहीं सकते, है ना? ओके सर, आगे समझ। जैसे एक होता है ना मोतीचूर का लड्डू, और एक होता है बेसन का लड्डू। तो मोतीचूर का लड्डू में छोटे छोटे मोती दिखते हैं, उसे आप कह सकते हो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और जबकि वो बेसन का लड्डू अगर आप देखें तो उसमें कहीं कुछ नहीं दिखता। अगर बनाने के ऊपर है, आप मोटी कोई उससे बनाएगा तो अलग बात है, अब इस पर बहस मत करने लगना। लेकिन मतलब उसमें दिखते अच्छा, हैं मास ऑफ एलिमेंट कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मास ऑफ एलिमेंट मींस अगर मैं इसके छोटे छोटे पीस कर दूं तो एक छोटे से पीस का मास, तो इसकी लेंथ कितनी है r d थीटा। यूनिट लेंथ का मास कितना है m/πr या लैम्डा। तो r d थीटा लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू r d थीटा। क्लियर है? चलिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क। यहां पर भी प्रॉपर्टीज बता दूं तो कैपिटल M मास इज द सेमी सर्कुलर डिस्क and capital R is the radius of the semicircular disk. Okay. So again, there are two ways to calculate cm of the semicircular disk. किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। स्लाइड नंबर डाल देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो इसमें भी क्या करना है हमें, ये मान लीजिए सेमी सर्कुलर डिस्क अंदर से ठोस है। तो दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, या तो इसको रिंग्स में कन्वर्ट कर लो या छोटे छोटे रिंग्स को भी तोड़ लो। तो एक तरीका तो ये है कि भाई इसको छोटे छोटे रिंग्स में काट लो। तो पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्क्राइब करें। तो मान लीजिए ये बाई एक्सिस है और ये वाली एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब दो तरीके हैं, इसको छोटी छोटी रिंग्स में काट लेते हैं। तो मैंने छोटी सी रिंग ये काटी। ठीक है, बहुत खराब बन गया। ठीक है, और मान लीजिए छोटी छोटी रिंग को, एक तरीका ये है कि छोटी छोटी रिंग से सॉल्व करना चाहें तो रिंग से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इस रिंग को भी तोड़ लें। इस रिंग को तोड़ लेते हैं तो ये मान लीजिए ये जो है ये रिंग को भी काट लिया। तो ये छोटी छोटी रिंग्स में से भी जो एलिमेंट निकला है, हमने अगर इस एलिमेंट को माना है तो इस एलिमेंट से भी कर सकते हैं सॉल्व।
तब क्या करना होगा भाई, इसकी रेडियस मान लीजिए एक्स है, एक छोटे से स्मॉल एक्स, तो जो और इसकी एंगुलर पोजीशन कितनी है डी थीटा, तो इसकी रेडियस, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस एक्स डी थीटा, और ये थिकनेस मान लीजिए कितनी है, ये थिकनेस मान लीजिए dx है, तो ये भी dx होगी, तो ओवरऑल dx ये है और x डी थीटा ये है, तो टोटल कितना हो गया इसका जो मास हो गया, इसकी जो एरिया हो गया। तो सबसे पहले तो हम डिस्क्राइब करते हैं इसकी मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया, सर इसमें आर नहीं आएगा, आर डी थीटा? मास पर यूनिट एरिया क्या कह रहे बेटा? सर इसमें आर डी थीटा नहीं आएगा? बेटा अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुको आप। मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, मास और एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसकी रेडियस x है और कैपिटल R जो है पूरी रेडियस है, ये वाली पूरी रेडियस जो है कैपिटल R है। हमने छोटी छोटी रिंग्स काटी है, तो एक छोटी रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल x है या स्मॉल r मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, या आपकी इच्छा के अनुसार है, आप इसे x मान रहे हैं या r मान रहे हैं। तो अगर आपको r माननी है तो r मान ले, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, ये r हो गई, तो ये dr हो गई, यहाँ पे dr हो गई। ओवरऑल मास अगर देखूं तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट या इनफाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट जो भी हमने माना है, इसका मास कितना होगा, मास होगा dm इज इक्वल टू, एरिया इसका है r डी थीटा dx या dr, या कह लें dx या कह लें dr। तो ये एरिया हो गया और सिग्मा से मल्टीप्लाई करके तो बन गया क्या, मास। समझ में आ गई बात? अब कुछ नहीं करना, आपको HCM निकालना है। तो तरीका क्या है, इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, यही तरीका रहा है। अब अगर इसका x कोऑर्डिनेट में बोलूं तो कितना होगा, इस स्मॉल एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं तो यहां पर अगर देखूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूं, ये वाला r है, स्मॉल r है, तो ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा r cos थीटा, और ये वाला r sin थीटा। तो x कोऑर्डिनेट तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, जीरो ही आएगा, आप निकाल भी सकते हैं और वैसे भी जीरो है क्योंकि दिस बॉडी सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। आप सीधे सीधे y कोऑर्डिनेट निकाले, है ना। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखेंगे, YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm। इंटीग्रल y लगाएंगे अगर, तो y कितना है, r sin थीटा, स्मॉल r है ना, तो स्मॉल r लिख देता हूं, एक मिनट रुको, स्मॉल r sin थीटा, और dm की जगह लगाएंगे कितना, सिग्मा इंटू r डी थीटा है dr, r डी थीटा dr या dr डी थीटा, और इसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो कैपिटल M आएगा ही। अब चूंकि यहाँ पे dr भी है डी थीटा भी है, तो इट शुड बी डबल इंटीग्रल। r की लिमिट अगर मैं देखूं तो 0 टू कैपिटल R होगी, स्मॉल r की लिमिट, और थीटा की लिमिट 0 टू पाई होगी। फिर से समझ लें क्यों, क्योंकि 0 टू पाई करके क्या हो रही है, एक तरीके से ये रिंग पूरी हो रही है,
फिर आर जो है बढ़ने से क्या हो रहा है, ये पूरी डिस्क पूरी हो जा रही है। आप समझ रहे होंगे इंटीग्रल कैसे वर्कआउट करना है। ठीक है, तो आप कर लें इसको कैलकुलेट, क्या आ रहा है बताएं जरा। सर 4r/3π 4r/3 3π 3r/, नहीं 4r/3π 4r/3π। देखें बाकी लोग निकालें। इट मीन सीएम के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स सीएम वाई सीएम इज इक्वल टू 0,4r/3π। ये थोड़ा याद रखेंगे, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। यानी कि सेमी सर्कुलर डिस्क अगर है तो उसका सीएम कहाँ होगा, नीचे से 4r/π दूरी पर होगा। 3 पाई सर। 4r/3π। ठीक है यहां तक। किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो बीच में बोल देना। सर हमें कैसे पता कि ये टोटली सिस्टम वाई एक्सिस के अलोंग ही है? एक्स बेटा एक्सिस के अलोंग पे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं कुछ। नहीं, आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। नहीं सर, कैलकुलेट से तो 0 आएगा, लेकिन हमें कैसे पता चला कि टोटली सिस्टम वाई एक्सिस के अलोंग है? नहीं, मैंने जो पिक्चर बनाया है और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें ड्रॉ किया है, उस दिखने में कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें बाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। और बाई एक्सिस के अबाउट अगर आप कोई भी दो एलिमेंट मान लो, ये मान लो और ये मान लो, तो ये बीच में इनका सेंटर ऑफ मास गिरेगा हमेशा, चाहे आप कहीं भी ले लो दो अपोजिट एलिमेंट्स। ओके सर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आप अगर चाहो तो इसको खड़ा भी रख सकते हो, तो एक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी रख सकते हो, ये ऐसे। अब फिर सॉल्व कर लो, और ये एक्स मान लो और ये वाई मान लो, फिर कैलकुलेट करो तो आपकी बार एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस का 4r/3π। तो ये तो अपनी चॉइस के ऊपर आप कैसा मानते हो। ठीक है, क्लियर हुई बात? नहीं? यस सर। चलिए यहां तक नोट कर लिया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा ये किया हुआ सॉल्व है, मैं आपको दिखा देता हूं, फटाफट आप लोग समझ लेना, क्योंकि बाकी सब में कुछ खास फर्क नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी स्फेरिकल शेल, हेमी सेमी ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्फीयर का तो पूरा पूरा सेंटर पे ही होगा। हेमी स्फीयर का कहां पे होगा वो देखें आप। हेमी स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है, और मान लीजिए ये हेमी स्फेरिकल शेल है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके हेमी स्फेरिकल शेल के यहां से दो कट मार दिए, तो जो रिंग निकली वो लाइक दिस, ये जो ग्रे कलर की आपको दिख रही होगी, इस टाइप की एक रिंग निकली है, जिसका ओरिएंटेशन अगर देखूं बेस से, तो थीटा थीटा एंगल पर डी थीटा इसमें फैला हुआ है, इसका जो सरफेस है, थीटा एंगल पर, थीटा एंगुलर पोजीशन पर डी थीटा डिस्ट्रीब्यूशन में ये एलिमेंट फैला हुआ है। अगर ये रेडियस कैपिटल आर है तो ये आर डी थीटा हो जाएगी इसकी लेंथ, और ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा तो ये भी आर कॉस थीटा। तो जो इस एलिमेंट की जो सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, 2πr cos थीटा। ये वाली हो गई 2πr cos थीटा, और ये थिकनेस हो गई कितनी, आर डी थीटा। तो इसका एरिया कितना हो गया, इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट बनाया इसका एरिया कितना हो गया, 2πr cos थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। ये रहा 2πr cos थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। और अगर मास पर यूनिट एरिया देखूं तो m/2πr², क्योंकि स्फेरिकल शेल है, कैपिटल m/2πr²। स्फेयर का जो सरफेस होता है 4πr², आधा है चूंकि तो 2πr²। तो dm अगर निकालूंगा तो सिग्मा इंटू 2π इंटू आर डी थीटा
इंटू आर कॉस थीटा, यही होगा भाई। इस एरिया की मल्टीप्लाई सिग्मा से कर दे। एक्सीएम 0 होगा ही, क्योंकि अगेन फिर कह सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। वाई सी एम निकालना है तो डीएम वाई डिवाइडेड बाई डीएम, डीएम का इंटीग्रल एम, और डीएम की वैल्यू जब लगाएंगे तो आर टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा, ये लगा दिया। और वाई कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो इस पर्टिकुलर रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा, नहीं समझ में आया? बस बाकी इस इंटीग्रल को 0 टू पाई, क्योंकि वजह पहला जो एरिया कटेगा, ये जो येलो कलर से मार्क किया हुआ है 0 डिग्री पर है, और ये जो सबसे अंतिम जो कटेगी रिंग वो यहाँ पे कटेगी, वो पाई/2 पे होगी। तो 0 टू पाई/2 इसको इंटीग्रल कर दे, r/2 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लें। हेलो हेलो सर, ये डीएम वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। क्या करे बेटा, डीएम इज इक्वल टू ना, हाँ जी, ये जो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर जो भी हेमिस्फेरिकल शेल है उसके पीसेस कर लिए। तो एक पीस जो है वो इस तरीके से निकला रिंग्स की फॉर्म में, और ये रिंग जो है वो ये रही, ठीक है। इस रिंग का एरिया निकाल लूंगा तो मुझे इसका मास पता चल जाएगा, है ना। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इसकी जब हमें लंबाई चौड़ाई पता हो, तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया को निकालने के लिए इस रिंग की रेडियस देखी, वो कितनी होगी, ये अगर आर है, ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा होगी। ये देखो, ये वाला आर साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा, ये हो जाएगी सरकमफ्रेंस आर कॉस थीटा। यस सर। और चूंकि ये थीटा ओरिएंटेशन पे डी थीटा में फैला हुआ है, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। और ये आर डी थीटा हो गई, और ये वाली हो गई 2 पाई आर कॉस थीटा। तो एक तरीके से ये 2 पाई आर कॉस थीटा, ये आर डी थीटा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू डी आर डी थीटा। और इसकी मल्टीप्लाई अगर सिग्मा से कर लेंगे तो बन जाएगा क्या, डीएम। ओके सर, ओके सर। बस डीएम की वैल्यू लगानी है और इसका वाई कोऑर्डिनेट लगाना है, किसका, इस एलिमेंट्री रिंग का, और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये सरफेस डेंसिटी निकाल रहे हैं ना सर हम ऊपर, सिग्मा? हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है, यहाँ तक बात। तो बड़ा अच्छी बात यह है कि इसमें r/2 दूरी पर बेस से इसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? हेलो सर। r/3 आ रहा है हेलो सर। बेटा, कैलकुलेट पहले करो, r/3 आ रहा है, r/2 आ रहा है? कैलकुलेट करने के बाद इस इंटीग्रल को बताओ। हाँ, बाकी किसी को डाउट है वो पूछे, जब तक कैलकुलेट करें आप लोग। सर ये लिमिट एक बार बता दो, 5/2 के लिए हमने। मैंने कहा कि जब पहला रिंग काटोगे तो यहीं से तो काटना शुरू करोगे। पहला रिंग यहाँ से काटोगे तो थीटा कितना होगा, 0 होगा।
यस सर। और सबसे अंतिम रिंग यहाँ कटेगा यहाँ पे, यस सर। तो थीटा कितना होगा? 5/2। ओके सर। 5/2 होगा, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है। हाँ, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, गड़बड़ आ रही है क्या? सर सही है, r/2 ही आ रहा है। कुछ बच्चे बता रहे हैं नहीं सही है, r/2 ही है। r/2 ही आ रहा है। चलो ठीक है, ये ठीक है। सर बाकी r/2 आ रहा है। ठीक है बेटा, जिनका नहीं आ रहा है वो बेटा एक बार दोबारा चेक करें, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसमें रेडियस की लिमिट नहीं लगेगी साथ में? बेटा, इसमें अंदर कुछ नहीं है ना, इसमें अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, हेमी स्फेरिकल शेल है, तो उसको उससे मतलब ही नहीं इस बात से। बात समझ रहे हो? आगे सर। चलो अगली बार देखते हैं बात। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, आप जो पूछ रहे हो वो ये है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, जिसकी रेडियस आर और कैपिटल एम मास है। तो आप या तो तरीका ये कि इसको छोटे छोटे पीस करो, अब की बार जो कटेगा वो रिंग ना कट के क्या कटेगी, डिस्क। यही तो फर्क होगा, क्योंकि अब अंदर भी मटेरियल है, इसमें वॉल्यूम में पूरे में फैला हुआ, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी कितनी होगी, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई हाफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हो गई यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम की मास रो। अब डीएम लिखना है, इसका डीएम कैसे लिखेंगे भाई, इसका डीएम लिखने के लिए इसका वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, वही काम करना है। रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा, तो एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा। और एरिया की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हाइट से, हाइट का काम कर रही है यहाँ कौन, आर डी थीटा, वो ये रहा। बस बाकी एक्सीएम 0 होगा, वाईसीएम डीएम बाई इंटीग्रल डीएम एम लिख लो, वाई कोऑर्डिनेट इसका आर साइन थीटा, बाकी सब वही रहेगा। बस बदलाव कहाँ पे है वो मैं मार्क कर दे रहा हूं, केवल इस जगह पर जो 2 पाई आर लिखा था, 2 पाई आर कॉस थीटा, उसकी जगह पे पाई आर कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, सिग्मा की जगह रो आ जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3/8 आर आएगा। लिमिट फिर वही लगेंगी, 0 to π/2, 0 to π/2। सर लिमिट बताना कैसे? बिल्कुल। हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही हाँ है, जी। बिल्कुल Yes, sir. पुरानी जैसी, जैसे पीछे वाला देखो प्रूफ, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहां पर बस फर्क क्या है कि आप यहां काट रहे हो तो रिंग कट रही है, और यहां काट रहे हो तो डिस्क कट रही है, बस इतना फर्क है। तो पहली डिस्क कहां से काटनी शुरू कर रहे हो, अगर नीचे शुरू कर रहे हो तो पहली डिस्क थीटा इज इक्वल टू 0 पर कटेगी, ये जगह होगी वो, और अंतिम डिस्क यहां काटोगे तो थीटा इज इक्वल टू π/2 होगी, नहीं होगी। Yes, sir. इसीलिए लगाइए, जरा सॉल्व करके आप लोग क्रॉस चेक करो इस आंसर को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किसी एक का भी आए तो बताएं, बाकी लोग होमवर्क करें अपना। अजय, यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है,
Yes. बेटा 2 दिन क्लास इधर उधर हुई, उसके चक्कर में आप लोग ये मत सोचना मैं बिल्कुल कैजुअल हो गया हूँ। और मेरी 2-3 जो लेट हुई क्लास, उसकी वजह एक ये भी थी कि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। ठीक है, उसके बाद ये कंप्यूटर ने साथ नहीं दिया तो और दिक्कत होने लगी। तो आप लोग बिल्कुल कैजुअल ना हो, और बिल्कुल जैसे बातें हम लोग कर रहे थे वैसे ही हम लोग साथ चलेंगे। तो ये 0 to 0,3/8 होगा। आप हमेशा याद रखेंगे इन चीजों को, तो आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। किसी और को कुछ पूछना है? मेथड 2 एक तरीका ये भी आप लोग बुक्स में देखेंगे। क्या करने का तरीका है भाई, सॉलिड स्फीयर, इसका वॉल्यूम एलिमेंट ले लो। वॉल्यूम एलिमेंट पता है किसी को सॉलिड स्फीयर का? वॉल्यूम एलिमेंट, कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट अगर आप लोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कैसे लोगे? 4/3 πr3। ना ना ना, वॉल्यूम R square एलिमेंट sin नहीं, square स्फेरिकल डी आर थीटा। स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा। ये लेते हो ना, तो इसमें काट लिया है ना। बस m की वैल्यू, रो की वैल्यू तो वही है, dv हो गया। अब हमने किसमें करना है इस सवाल को? बेसिकली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो तरीका क्या है, बस लिमिट चेंज हो जाएंगी। लिमिट आप क्या लगाते हो? पूरा स्फीयर होता है तो कितनी कितनी लगाते हो? थीटा लगाते हैं 0 से पाई। पहली बात तो r की लिमिट 0 to r होगी। यस सर। स्मॉल r की लिमिट 0 to r। थीटा की लिमिट याद हो तो -π/2 टू +π/2 होती थी, नहीं 0 to पाई होती थी। 0 to पाई। हाँ, 0 जिस to pi। कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं 0 to पाई, लेकिन यहाँ पे कितनी होगी? 0 to π/2, क्योंकि आधा ही स्फीयर है ना। और फाई की लिमिट 0 to 2 पाई होती थी, वो ये है ही। सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा, कितना? 3/8 पाई, 3/8 r। सॉल्व करें इसे तो आइदर यू कैन डू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और यू कैन डू बाय सिंपल डिफरेंशिएशन। भाई कुल मिला के हमें एक वॉल्यूम एलिमेंट मानना होता है, चाहे आप इस तरीके से मान लो डिस्कनुमा, चाहे आप इस तरीके से। ठीक है, नोट करो नोट करो। आप लोग जब नोट करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है? स्टैंडर्ड तरीके से जो मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो स्टैंडर्ड मानते हो वही वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। यहाँ पे ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। z कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ क्योंकि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। z कोऑर्डिनेट निकालना है तो z कोऑर्डिनेट कितना होगा? r cos थीटा। वो लगाया भी है, ये देखें आप। एक्सक्यूज मी सर। बेटा बोले। सर जो सर आपने वो स्फेरिकल शेल वाला कराया था सर, उसको भी इस मेथड से कर सकते हैं, सिग्मा इनटू डीए करके? ना ना ना, इस मेथड से क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ वॉल्यूम एलिमेंट नहीं मान पाएंगे, मतलब सिग्मा क्योंकि डीए उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। नहीं, सिग्मा डीए से अगर हम करें तो सिग्मा इनटू डीए मतलब आर सिग्मा डीए से तो बेटा करा है ये। अच्छा हाँ सर, मतलब एक मतलब मैंने मतलब जो वो हम डीए लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, फिर मतलब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कर लें इसको भी? हाँ, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कर नहीं पाओगे क्योंकि 0 to r वाली लिमिट 0 हो जाएगी। 0 to नहीं सर, लिमिट सर मतलब आर तो फिक्स हो जाएगा ना सर? r फिक्स हो जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट की बजाय आपको सरफेस एलिमेंट मानना पड़ेगा, अच्छा सर। है ना।
और सरफेस एलिमेंट मानोगे तो बात तो वही है, जो ये मैंने किया वो यही किया। ये थोड़ा आसान पड़ेगा आप लोगों को। आ गया इससे भी आंसर सभी लोगों का? चलिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का अगर प्रॉपर्टीज देखें तो कैपिटल एम मास, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपिटल स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ दिस कोन। तो इसका निकालना है। तो हमने क्या किया, इस कोन को हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने ही वाला है, जस्ट 2 मिनट रुके आप लोग। कोलिजन चालू कर रहा हूं मैं, वही 3 डायमेंशनल कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन और सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो आप लोग जाइए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल चालू कर रहा हूं मैं अभी। बस 2 मिनट का वक्त दो, मैंने इसीलिए ये जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूं। भाई मैंने क्या किया, कोन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए। तो मान लीजिए एक डिस्क इस तरीके की निकली कोन की, जिसकी हाइट कितनी है, डी जेड। इसकी हाइट कितनी है, डी जेड एट द पोजिशन जेड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द ओरिजिन। तो जेड हाइट पर ये डी जेड हाइट का एक डिस्क कटा है, जिसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी जेड। वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी जेड। और मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यूब एच, पाई आर स्क्वायर एच, याद है। तो डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर डीएम, डी जेड इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी जेड वॉल्यूम हो गया इसका। अब एक्स सी एम वाई सी एम 0 होगा, जेड सी एम निकालना है। तो जेड सी एम निकालने के लिए लिमिट लगा देंगे z की 0 to h, क्योंकि z की लिमिट है 0 to h। और dm की जगह लगा देंगे आप रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी जेड। अब r चूंकि किस टर्म्स में लिखना होगा हमें, z के टर्म्स में। तो z के टर्म्स में लिखने के लिए आप सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल कर ले। कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन स्मॉल z। भाई ये सिमिलर ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, मैं इसको अलग बना देता हूं। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल एच है और ये स्मॉल जेड है। तो आप एच बाई आर या आर बाई एच इज इक्वल टू आर बाई जेड कैसे भी निकाल के यहां से आर इज इक्वल टू निकाल लेंगे, तो जेड इंटू आर बाई एच आ जाएगा। ये वैल्यू यहां पुट कर दें आर की जगह पे। बस बाकी अब पूरा इंटीग्रल जेड में हो गया। जेड को सॉल्व कर ले, 3h/4 आ जाएगा आपका। सॉल्व करें, सॉल्व करते ही आ जाएगा आप लोगों को। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है ये पूछ रहे हैं आप लोग। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, जो दिख रहा है वही है। एक्स वाई जेड लिख लिया तो कार्टेशियन ही हुआ। सर इसमें बीच में क्या काटा है, ये स्फीयर काटा हुआ है। नहीं, स्फीयर कहाँ है, कोन को जब आप काटोगे तो क्या निकलेंगे, डिस्क। डिस्क है। ओके सर। भाई किसी भी कोन को आप काटोगे तो डिस्क ही तो निकलेंगे, वही डिस्क है। डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट डी जेड। ठीक है, ओके सर। चलो समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा देर नहीं लगाए, क्योंकि ये सब सिंपल चीजें हैं बहुत। सॉल्व किया किसी ने, हर बार एक ही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं।
किरण बेटा क्या पूछ रहे हैं? किरण किरण आवाज नहीं आ रही। आ गया सर। अच्छा, ये कहने का मतलब है कि ये सिस्टम XYZ क्यों नहीं लिया? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कर लो ना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ये Y लिख लो, ये X लिख लो, है ना, तब भी रहेगा यही सब खेल, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये सही लिया है तो टेक्निकली तो गलती है, क्योंकि बाकी सब चीजें इसमें नहीं होंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ओवरऑल सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन 3h/4 आएगा। कहां से? कोन के वर्टेक्स से। और कोन के बेस से कहूं तो h/4। तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस से पूछा गया है या फिर वर्टेक्स से पूछा गया। तो याद रखना आप लोग, ये कॉमन सेंस से आप सोचना कि ज्यादातर जो दूरी होगी वो कहाँ होगी, सेंटर ऑफ मास किधर होगा। अगर भाई ये कोन है तो मोस्ट ऑफ दी मासेस किधर है? इसी साइड में तो है, तो सेंटर ऑफ मास इधर से पास होगा और इधर से दूर होगा, ऐसे याद रखना। तो पास कितना होगा तो h/4 आपको याद आ जाएगा, दूर कितना होगा 3h/4 याद आ जाएगा। समझ गए बात को? सर इसको हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो बेटा, वही है, करो आप कैसे भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी करो इसको, सिलिंड्रिकल क्या स्फेरिकल से भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको लिमिट लगानी पड़ेगी कि 0 to Z की लिमिट आपको रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, थीटा की लिमिट। भाई यही, इसको करने को आप कैसे भी कर सकते हो, ये तो एक तरीका है। ठीक है, आपने सुना होगा बाउंडेड इंटीग्रल, सुने बाउंडेड इंटीग्रल्स? नहीं सर। अरे जिसमें लिमिट जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, 0 to √a² - x², ऐसे। किया तो है पर नाम नहीं। मतलब कहने का मतलब ये कि वेरिएबल लिमिट लगाने से क्या होता है कि जो शेप आप चाहोगे वो शेप बन जाएगा। समझ रहे हो? तो आपने जो डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल करे होंगे उसमें ये चीजें सिखाई जाती है, तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कोशिश करना, नहीं आया तो मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। ओवरऑल आप ये सब एक बार दोबारा अपने घर पे करके देखना, मैंने इस पे लिख दिया है कि होमवर्क ही समझ लें। और आप सॉलिड हेमीस्फीयर का मैंने अभी निकाल के दिखाया, 3/8 फ्रॉम बेस, और हेमीस्फेरिकल शेल का r/2, ट्राइंगल का सेंट्रोइड आएगा, सॉलिड कोन का अभी निकाला था फ्रॉम द बेस h/4, और हॉलो कोन अगर है, सॉलिड कोन है तो h/4, हॉलो कोन है तो h/3 आएगा फ्रॉम द बेस। तो ये आप याद भी रख ले, और बाकी आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग। तो ये सारा डेटा बेस से लिख दिया, इसीलिए सारे बेस 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 लिखे हुए। आगे बढ़ूं? ये सेंट्रोइड क्यों लिखा है ट्रायंगल का हमने?
बेटा निकालोगे तब उसका प्रूफ होता है। जैसे ये है ना सेंट्रॉइड, समझते हो ना, सीजी जहां पे बीच निकलता है, में बीच में सीजी कैसे निकलता है? सम बाय 3 कर देते हैं। 3 से डिवाइड कर देते हैं सर। नहीं, वो तो कोऑर्डिनेट से करते हैं। ये दूरी जो होती है, अगर ये है तो ये किस रेशियो में कटती है? 2/3। 3:2 या 2:3 यहां पर। तो निकालोगे जब आप, तो सेंट्रॉइड निकल के आएगा। ये मर्जी से नहीं लिखा हुआ है, ये मतलब निकालने के बाद लिखा है। आप लोग केवल याद कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अब जैसे ये जो बेसिकली पढ़ाया गया वो इसलिए पढ़ाया गया कि आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चंस में करवा पाऊं, और दूसरा मैं कोलिजन में इंट्रोड्यूस करवा पाऊं सेंटर ऑफ मास को। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है बड़ा अच्छा, आप सबका टेंशन जरूरी है। जो लोग अभी थोड़ा सुस्त हो गए थे या जिनको लग रहा था कि यार ये सब चीजें क्या चल रही है, वो थोड़ा आप इधर देखें तो उनको अच्छा लगेगा। ठीक है। ये बेटा आपके असाइनमेंट का नहीं है, ये दूसरे किसी जगह से लिया हुआ है। ए डंबल कंसिस्टिंग ऑफ 2 masses ऑफ मास कैप स्मॉल एम ईच। ये डंबल है जिसपे 2 मास स्मॉल एम लगे हुए हैं, कनेक्टेड बाय लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल, falls on the 2 pads of equal height, one steel and other brass, through a height small h. Small h height से ये 2 pads पर गिरा है। The coefficient of restitution are E1 and E2. E1 is less than E2. ये coefficient of restitution इसका E1 है और इसका coefficient of restitution E2 है। To what maximum height will the center of mass of the dumbbell rise after bouncing of the pads? इस पे टकराने के बाद डंबल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा कितनी हाइट तक पहुंचेगा केबल। तो आप लोग कॉमन सेंस थोड़ा लगाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 मिनट आप लोग कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। हम वापस कोलिजन में आ जाएं। सब लोग अपने आप को अब दोबारा कोलिजन वापस ले आए, क्योंकि कोलिजन में ही इंट्रोड्यूस करा है मैंने सेंटर ऑफ मास, इसीलिए बता रहा हूं। तो याद हो मैंने बाउंसिंग ऑफ बॉल्स के बारे में बताया था। कितनी वेलोसिटी से कोई बॉल वापस लौटती है टकराने के बाद? ई टाइम्स ऐसे बोल दो, ई टाइम्स। तो एक बात बताओ, जब ये एच हाइट से गिरेगी ये डंबल, तो यहाँ पे टकराते वक्त किसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2gh। हाँ, √2gh है ना। इस डंबल का जब टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। और दूसरे वाले की दूसरे वाले कितनी होगी बेटा? सर सेम होगी √2gh। सेम होगी √2gh। क्यों? क्योंकि दोनों अभी टकराए थोड़ा ही है। लेकिन जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कोलिजन के बाद E1 इंटू √2gh और इसकी E2 इंटू √2gh। इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? अगर इनकी ये वेलोसिटी है तो इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? बता सकते हो आप लोग? कैसे निकालते थे? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब मैं बताया था। भाई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन M1 R1। एक मिनट रुके आप लोग, मैं अभी एक स्लाइड और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुई थी क्लास में, तो मुझे लगता है मैंने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बताया, पोजीशन बताया है ना।
एक स्लाइड और ऐड करके थोड़ा सा एक दो हेडिंग और लिख ले। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, BCM इज इक्वल टू समेशन IMI/VI डिवाइडेड बाई समेशन MI। मतलब पोजीशन को अगर एक बार दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको? वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कितना होगा? ACM इज इक्वल टू समेशन IMI, एक बार और डिफरेंशिएट करें, AI डिवाइडेड बाई समेशन MI। अब इसके बहुत सारे कंसीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। कंसीक्वेंसेस ये हो सकते हैं भाई, इसको अगर आप लिखो तो इसको आप लिख सकते हो कैपिटल M, BCM इज इक्वल टू, ये हो गया MB मींस PI, MB मींस PI, और समेशन PI करूंगा तो ये बन गया कैपिटल P, मतलब टोटल मोमेंटम, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय नेट मास। तो यानी कि आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू MVCM। तो आप देख सकते हैं कि CM पर अगर पूरे मास को मान लें और CM की वेलोसिटी नोट कर लें तो नेट मोमेंटम सिस्टम का आप निकाल सकते हो MVCM से। सिमिलरली इसको भी कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ACM इज इक्वल टू MIAI, MIAI MA इज इक्वल टू F होता है, तो FI हो गया। FI मींस समेशन FI मींस F एक्सटर्नल, यानी नेट external force on the system of particles, and capital M. So you can write F external is equal to MACM. तो अगेन आप कह सकते हो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर रिप्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास मान ले, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल ले, तो MACM जो होता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स देता है। और यहीं से बनता है क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पर क्या करने का मतलब है, डीपी अगर मैं कर लूं, सिंस अभी मैंने लिखा P इज इक्वल टू MBCM, एक बार डिफरेंशिएट कर लूं तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा MACM, और MACM अभी निकाला था F एक्सटर्नल, यानी न्यूटन्स लॉ ये हो गया F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ फॉर सेकेंड लॉ, दिस इज Newton's second law for system of particles. और यहीं से बना कि इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर इनके भी कंसीक्वेंसेस देखूं, मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, पहले आप इसको लिख लें। अब यहां से देखें आप, इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी यहां से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कि ये बना क्या कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल 0 है तो उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। External force on the system of particle is 0, then momentum of system of particles should conserve.
दिस इज कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और यहीं से एक कंसीक्वेंस और निकलता है कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो यहां से ये भी निकलता है एसीएम 0 होगा। और एसीएम 0 कब कब होगा? जब बीसीएम कांस्टेंट हो या 0 हो। या तो बीसीएम क्या हो? कांस्टेंट हो या 0 हो। कांस्टेंट होने का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास चल रहा है उसी से चलता रहेगा, और 0 होने का मतलब है कि अगर वो रुका है तो रुका रहेगा। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर 0 है तो सीएम अगर जहां है वहीं रहेगा, अगर रुका हुआ था तो रुका हुआ रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसके एग्जांपल बड़े अच्छे हैं, जैसे मैन बोट प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए एक बोट है, ठीक है, और इस पे एक पर्टिकुलर पर्सन है खड़ा हुआ, ठीक है। इनिशियली ये रेस्ट में है, तो इनका जो सीएम होगा वो कहीं यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए इस बोट का और मैन का। और ये पानी के ऊपर मान लीजिए ये बोट खड़ी हुई है, मतलब कोई एक्सटर्नल और कोई नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये अगर मान लीजिए ये पर्सन क्या करे, इस बोट पर चलने लगे, तो बोट पर जब चलेगा तो चाहे वो किधर को भी जाए इसका सीएम अब यही रहेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे है नहीं, कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो जिधर भी बोट जाएगी, जिधर भी ये जाएगा उससे मतलब नहीं। ओवरऑल सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, बोट प्लस मैन का सेंटर ऑफ मास हमेशा यही बना रहेगा। तो अगर ये मान लो आगे चल के यहाँ ये इधर चलने लगे तो बोट भी पीछे भागने लगेगी इस तरीके से कि फिर से वही पोजीशन पे ये, अगर मान लीजिए ये यहाँ पहुंच गया तो इस तरीके से पहुंचेगा कि इसका सीएम यही रहे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। ऐसी आप लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी होगी, पिछली क्लास में मैं शायद बता भी रहा था आप लोगों को मैं, कि मान लीजिए एक मंकी है, और एक बलून के ऊपर एक मंकी चढ़ा हुआ है। ये बलून है, और ये रस्सी है उसकी, और यहाँ पे कोई मंकी है या कोई पर्सन ही है मान लीजिए, ठीक है। और इसका कैपिटल एम मास है, इसका स्मॉल एम मास है। इनका ऑब्वियस है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ इनका सेंटर ऑफ मास है, और ये लटके हुए हवा में। तो अगर मंकी जो है या मैन जो है वो ऊपर की तरफ को भागेगा तो ये बलून भी धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आएगा कि सेंटर ऑफ मास क्या रहे? यहीं। तो जो अगर मान लीजिए कहाँ मिलेंगे ये लोग, कहाँ मिलेंगे? तो ये मंकी और जो भी है वो मिलेंगे कहाँ पे? इनकी मुलाकात कहाँ होगी? सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं होना है, वो इस लाइन पे ही बने रहना है। तो जहां पे भी इनकी मुलाकात होगी वो यहीं पे होगी, और यहीं पे ये लोग मिलेंगे। मतलब अगर मैं इनको पॉइंट मास बताऊं तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स ही रहेगा, अगर वो जहां है वैसे ही रहेगा। मतलब यही कहने का मतलब है। एक दो क्वेश्चन और भी इस तरीके के आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर मान लीजिए रास्ते में कोई बम ब्लास्ट हो जाए, बम फेंका, या फिर आपने एक और सुना होगा, मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल इस तरीके करे होंगे आप लोगों ने। एक प्रोजेक्टाइल रास्ते में फट गया,
और 2 पीस बन गए, ठीक है। अभी बताता हूँ बेटा, मंकी वाला भी दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए रास्ते में दो इसमें फट गया, तो एक बार ये नीचे चला आया, मान लीजिए एक टुकड़ा इसका, तो अगला टुकड़ा किधर जाएगा, इस दूसरा टुकड़ा किधर भागेगा, तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो पहले था वही अभी भी लग रहा है, सिस्टम पे उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ा, अप नहीं जाएगा बेटा, इस तरीके से जाएगा जिससे कि ये इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहे, उसी जगह पर रहे जिस जगह पर ये नहीं फटने पर गिरता। मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ अगर ये बिना फटे यहाँ गिरता अगर, तो इसको इस तरीके से जाना होगा जिससे कि इनका सेंटर ऑफ मास क्या बना रहे, यही। तो मान लीजिए ये इस तरीके से, ये यहाँ है तो ये यहाँ हो, जिससे इसका सेंटर ऑफ मास यहीं आए, ये यहाँ है तो ये यहाँ हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन को फॉलो करेगा अगर नहीं फटता तो, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग एससी वर्मा में बहुत देख लोगे। ये मंकी और मैन वाली प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए एक बलून है जिसका मास कैपिटल एम है, और मान लीजिए उसकी जो स्ट्रिंग से लटका हुआ एक मंकी है या मैन है या कोई भी है, तो अगर वो ऊपर चढ़ने लगे अगर इस रस्सी पर वो ऊपर चढ़ने लगे तो उनकी मुलाकात कहाँ होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चढ़ने अगर लगेगा तो चूंकि सीएम नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कोई है नहीं, सिस्टम में है कौन, स्मॉल और कैपिटल एम मास, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम मास, इनके अलावा कोई नहीं है। तो फिर ऊपर की तरफ को ये अगर जाएगा तो ये बलून भी नीचे की तरफ को आएगा, जिससे कि इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं बना रहे। इनकी मुलाकात कहाँ होगी, सेंटर ऑफ मास पे ही होगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सुन ले फिर से। मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम आई कि भाई ये कैपिटल एम मास का कोई, मान लीजिए आपने पार्टिकल फेंका या बॉम्ब फेंका, और वो ये बीच रास्ते में मान लीजिए टॉप पॉइंट पर ये क्या हुआ, दो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, 2 फ्रेगमेंट्स में टूट गया। एक फ्रेगमेंट मान लीजिए मैं बता देता हूं आपको कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगा, तो दूसरे फ्रेगमेंट का क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ दूसरा फ्रेगमेंट हो या 3 फ्रेगमेंट हो, इसका सेंटर ऑफ मास पहले किस पाथ को फॉलो कर रहा था, प्रोजेक्टाइल पाथ को। अगर ये फटता नहीं तो इसी पाथ को, रेड कलर वाले पाथ को फॉलो करता रहता, तो अभी भी इनका सेंटर ऑफ मास रेड कलर वाले पाथ को ही फॉलो करेगा। ऐसा करने के लिए इसको थोड़ा सा आगे की तरफ को जाना पड़ेगा, जिससे कि इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा इस रेड लाइन पर, जो ब्रेक लाइन मैंने बनाई है डैश, उस पर गिरे। तो ये जब यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ आएगा, जिससे सेंटर ऑफ मास यहीं आए। जब ये यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ जाएगा, जिससे कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आए। समझ रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या करेगा, जिस प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले फॉलो कर रहा था वही सिस्टम बाद में भी करेगा। अब समझ में आ गई बात। किसी को कोई डाउट है, कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है। सर एक बार बोट वाला बता दीजिए। बोट वाला बेटा ये प्रॉब्लम बहुत फेमस है। मान लीजिए एक बोट पर आप खड़े हो, आपने कभी देखा होगा बोट पे अगर आप आगे की तरफ को चलो तो बोट पीछे भागती है ना। अगर आप पानी के ऊपर बोट पर चलने लगो तो डर लगता है। उसकी वजह क्या होती है, बोट जब आगे की तरफ को आप भागोगे तो पीछे की तरफ को बोट खुद भागती है। उसकी वजह क्या है, इस बात को 2 तरीके से आप कह सकते हो। या तो ये कह लो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर आप आगे की तरफ को मोमेंटम एम भी क्रिएट करोगे तो पीछे की तरफ को बोट क्रिएट करेगी, जिससे मोमेंटम क्या रहे, 0 था 0 ही बना रहे। या फिर इस बात को आप ऐसे कह लो कि बोट और मैन का या मास का जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, बोट और पर्सन का जो सेंटर ऑफ मास है वो वही मेंटेन रहेगा, चाहे आप कहीं भी भागे। तो तरीका क्या होगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो बोट भी पीछे की तरफ को भागेगी इस तरीके से, जिससे कि आपका और बोट का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के अलोंग रहे।
ओके सर। ठीक है, इस तरह आप रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक दो अभी, क्योंकि इतना वो नहीं है, लेकिन टेस्ट में मैं आप लोगों के लिए एक दो प्रॉब्लम इस तरीके की रखूंगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। हाँ, इसका सवाल पे वापस आ जाते हैं। तो अब वो फार्मूला जो इस्तेमाल करना था वो कुछ लोगों को पता भी होगा भाई। आफ्टर कोलिजन इनकी इसकी वेलोसिटी हो गई E1 अंडर रूट 2gh और इसकी वेलोसिटी हो गई E2 अंडर रूट 2gh। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी भाई? दोनों का मास m है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? m इंटू E1 अंडर रूट 2gh प्लस m इंटू E2 अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई सी ऑप्शन है क्या? m प्लस n। देखते हैं बेटा, हाँ सी ही है शायद। तो ये आ जाएगा कितना? अंडर रूट 2gh बाहर, और बाहर कितना आ जाएगा? E1 प्लस E2 बाई 2। यही तो आ जाएगा। सी नहीं आएगा बेटा, बी आएगा। ये आया बी, सर भी आया बी आएगा। अब बजाय देखो, अब आप देखें यहाँ पे सीएम कितनी वेलोसिटी जा रहा है, तो ये कितनी हाइट तक उठेगा? तो भाई इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई हमें इतनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो कितनी हाइट तक जाएगा? मान लीजिए h हाइट तक गया, तो आप फार्मूला लगाएं भाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अभी निकाली आप लोगों ने, कितनी? अंडर रूट 2gh E1 प्लस E2 बाई 2, यही तो आई थी। और फाइनल वेलोसिटी 0। कितनी हाइट तक जाएगा? निकाला किसी ने? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, यही तो है। तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 2gh अंडर रूट E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल H। यहां से 2g कैंसिल हो गया, तो H इज इक्वल टू आ गया H बाई 4 E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था इसलिए करवाया आप लोगों को। चलें आगे बढ़े। H को नेगेटिव वाला बताना मतलब नहीं समझा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। -2gh लिए सर, ये बताना कि बेटा ऊपर जा रहा है तो -2gh ही तो लूंगा। ची नीचे की तरफ को है और जा ऊपर रहा है तो माइनस ही लूंगा ना। ओके। चलिए अब आते हैं दोबारा से कोलिजन में, 2 डायमेंशनल कोलिजन, जो कि अभी तक मैंने नहीं करवाया था, 1 डायमेंशनल कोलिजन करवा रहा था। अब थोड़ा डिटेल में आ जाए, क्योंकि अब हमें सेंटर ऑफ मास का भी आइडिया है। ठीक है, सो 2 डायमेंशनल कोलिजन इन लैब फ्रेम। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, मान लीजिए 2 पार्टिकल है जिनके मासेस m1 mm दोनों इक्वल मास के हैं,
और एक पार्टिकल v वेलोसिटी से दूसरे पार्टिकल जो रेस्ट में है उससे जाके टकरा रहा है। आफ्टर कोलिजन ये वाला पार्टिकल जो पहला वाला है वो bf वेलोसिटी से थीटा एंगल पर और दूसरा वाला फाई एंगल पर डेविएट हो गया। तो हमें निकालना है bf और थीटा फाई में रिलेशनशिप, इस तरीके से हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन है बेसिकली 2 डायमेंशनल कोलिजन, उसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बात क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की। लगाएं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ तो क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम होगा mb और 0, तो mb ही होगा केवल, और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा m bf प्लस m स्मॉल bf। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, यानी यहां से आया v इज इक्वल टू bf प्लस bf। ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से आई इक्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा लेते हैं। अगर इफ E इज इक्वल टू 1, इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं। कितना आएगा, हाफ m b स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m bf स्क्वायर प्लस हाफ m bf स्क्वायर। सही है, हाफ m कैंसिल हो गया, तो यहां से b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया bf स्क्वायर प्लस bf स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपके पास है। आप ये बता सकते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन bf एंड bf, इन दो इक्वेशन से मदद से। अगर ऊपर वाली इक्वेशन का सेल्फ प्रोडक्ट कर दूं, टेकिंग सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1, क्या मिलेगा अपने को, v डॉट b इज इक्वल टू bf प्लस bf डॉट bf प्लस bf। यही तो होगा, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट दोनों तरफ कर दें उन्हीं का उसी से। तो ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया bf स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल bf स्क्वायर प्लस 2 bf डॉट bf। समझ में आ रहा है यहां तक। और यूजिंग इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 देखें तो bf प्लस bf का स्क्वायर ये b स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 2 bf डॉट bf। ओवरऑल ये कैंसिल हो गया, तो bf डॉट कैपिटल bf इज इक्वल टू 0, यानी कि bf इज परपेंडिकुलर टू bf।
यहां तक नोट करें, दैट इज अल्फा प्लस बीटा या थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू हाउ मच, π/2। ये पूछा गया रिजल्ट है और आप लोगों को पता भी होगा कि ये एंगल कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बिलियर्ड बॉल एग्जाम्पल, अगर बिलियर्ड बॉल वाला गेम आप लोगों ने देखा होगा, पूल वगैरह देखा होगा, उसमें इक्वल मास की 2 बॉल्स होती है, एक जाके दूसरी पे टकराती है और सामने वाली बॉल रेस्ट में रहती है। अगर उनके बीच कोलिजन इलास्टिक होगा तो वो कितने एंगल पर भागेंगी, 90 डिग्रीज के एंगल पर, है ना। सर हम्म सर जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं हम, तो वो इससे रिलेट हो सकता है कि वो भी सेम ऐसे ही होता है ना। बेटा होता है, लेकिन उसमें दोनों आइडेंटिकल नहीं चीजें होती हैं। हाँ उसमें एक फोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ हाँ यस सर। बस ये। लेकिन हाँ एनालॉगस होता है, यही तो एक अचीवमेंट था आइंस्टाइन का। कॉम्पटन इफेक्ट को आइंस्टाइन ने, जो क्या नाम है, सॉरी, कॉम्पटन इफेक्ट को आइंस्टाइन ने नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट का जब एग्जिस्टेंस आया और उसको एक्सप्लेन किया गया क्वांटम इफेक्ट से, क्वांटम थ्योरी से, तभी तो ये लोगों को डाउट क्लियर हुआ कि हाँ फोटोन इज लाइक पार्टिकल। तभी क्लियर हुआ, तभी फोटोन थ्योरी को बल मिला। तो आपकी बात बिल्कुल सही, कॉम्पटन इफेक्ट में जो कोलिजन होता है फोटोन ऐसे ही करता है जैसे कोई पार्टिकल कर रहा हो। वहीं से डेवलप हुई है क्वांटम थ्योरी। चलें आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताएं, अगर ई की वैल्यू 1 ना हो के कुछ और हो तो क्या होगा? ई की वैल्यू 1 ना हो तो क्या होगा? तो फिर मतलब इनइलास्टिक कोलिजन चिपक भी सकते हैं मतलब बॉल्स। नहीं, मान लो ई इज इक्वल टू 0 to 1 के बीच में हो, कुछ ई हो, मतलब ये चीज ई हो, तब आप सोचो ये इक्वल जो लगा हुआ है वो इक्वल ना लिख के क्या लिखूंगा, प्लस। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले की तुलना में कम होगी, तो यहां पे क्या लिखूंगा, लेस। है ना। Yes, sir. और ये तो वही रहेगी, सेम ही रहेगी इक्वेशन 1, तो सेल्फ प्रोडक्ट भी सेम रहेगा। लेकिन बी स्क्वायर जो है वो क्या है, बड़ा है या छोटा है? बी स्क्वायर बड़ा है बी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर से, ये बड़ा है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, बी डॉट बी पॉजिटिव ही तो आएगा। सर ये दोबारा अरे कॉमन सेंस से सोचो, ये करो चीज बड़ी है इससे, यही तो लिखा है इक्वेशन 2 में, ये बड़ी है, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में से जब ये जाएगी तो पॉजिटिव ही तो बचेगी, यानी ये चीज एक पॉजिटिव नंबर होगी ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और किसी का सेल प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो कॉस्ट थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 90 से कम या 90 से ज्यादा। नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा लिख दूंगा, से कम। 90 से कम, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 90 से कम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं अभी समराइज कर देता हूं, इसको हटाना पड़ेगा पहले तो मुझे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहां पर समराइज कर देता हूं, ये देखो आप, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, ये आप लोग लिखे अपनी कॉपी में, कुछ लोग 90 ज्यादा लिख दे रहे हैं। इफ कोलिजन इज इलास्टिक तो पहली इक्वेशन वही रहेगी, दूसरी इक्वेशन में ग्रेटर वाला साइन लग जाएगा,
सेल्फ प्रोडक्ट करूंगा तो भी वही रहेगी। ये चीज जो है बी स्क्वायर बड़ा है ओवरऑल, ये कैंसिल होने के बाद बी डॉट बी एफ जो हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा। और 0 से बड़ा डॉट प्रोडक्ट तभी होता है जब 90 से कम हो, क्योंकि कॉस 90 से कम पॉजिटिव होता है, 90 से ज्यादा नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये 90 से कम एंगल पर जाएंगे, और अगर पूरा इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये 90 के बराबर जाएंगे। समझ रहे हैं? 90 से ज्यादा के कोई चांस नहीं होंगे। तो जो लोग अच्छा पूल खेल लेते हैं या जो लोग कैरम बोर्ड अच्छा खेल लेते हैं, वो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई होती है, या फिर कह लो कि उनकी प्रैक्टिस में ये चीज होती है, ये एंगल भांपना। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने देखा होगा शॉट लगा लेते हैं, वो इसी तरीके से लगाते हैं कि एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, और वो लोग क्या करते हैं, एक गोटी इधर निकालते हैं और गोटी इधर निकालते हैं। तो वो जिसको जितना सही से समझ लेगा ये बात, वो ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। या आप लोग नोट कर लें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाऊं? यस। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन थोड़ा बदल देता हूं, और ये क्वेश्चन फिर आपके असाइनमेंट में नहीं है। A mass small 2 small m moving at speed v naught collides elastically with stationary mass small m। अब थोड़ा सवाल अलग है, दोनों मासेज अलग अलग है। एक 2m मास है, एक 2m मास है और एक स्मॉल m मास है, ठीक है। और 2m मास मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, और स्टेशनरी मास है स्मॉल m। and after collision they both, if the two masses scattered at equal angle, non-zero angles with respect to incident direction। यानी अगर इंसिडेंट डायरेक्शन ये है तो इससे ये वाला भी 2m मास वाला भी उसी एंगल पर जा रहा है जिस एंगल पर स्मॉल m मास का पार्टिकल। ठीक है, तो क्या पूछा है, व्हाट इज दिस एंगल। वो एंगल थीटा कितना होगा, यानी कि फाइंड थीटा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये आपको अगर करना है तो कैसे करेंगे, अगेन आपको वही फॉलो करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इलास्टिकली है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, नो डाउट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएं पहले। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी वेक्टर फॉर्म में ना लगाकर आप इसे अलोंग एक्स एक्सिस एक बार निकाल लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे तो क्या आएगा, 2m मास v नॉट वेलोसिटी चल रहा है, बाकी दूसरा रेस्ट में है। 2m मास मान लीजिए ये वेलोसिटी v1 है और ये v2 है, तो 2m v1 cos थीटा प्लस
2m_b2 sin cos थीटा। ठीक है, ये तो होगा। मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, मोमेंटम का कंपोनेंट। म्यूट कर लो। सर वो m आएगा ना, mv2। हाँ, एक मिनट बेटा, सही कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 2m_b0, this is the momentum before collision, and after collision along x-axis 2m_b1 cos theta और m_b2 cos theta। ठीक है ना। सिमिलरली अगर y एक्सिस के अलोंग देखूं तो जीरो होगा। y एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? जीरो, क्योंकि ना इसमें मोमेंटम है ना इसमें मोमेंटम है। और इसका मोमेंटम कितना होगा? 2m_b1 साइन थीटा प्लस का, लेकिन m_b2 साइन थीटा माइनस का। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। यही तो आएंगी इक्वेशन, इसमें किसी को कोई डाउट है? अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वाली इक्वेशन लिख लें। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं। सेकंड टर्म में, हाँ ठीक। तो कितना आएगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से इक्वेशन? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2m v0 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ 2m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। सही लिखा हुआ है? m भी कैंसिल कर दूं तो यहां से आ जाएगा कितना? 2 2 2 भी कैंसिल, b1 स्क्वायर प्लस 2b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2b0 स्क्वायर। यही तो आएगा। नहीं समझ में आया? बेटा यहां तक समझ में आ गया तीनों इक्वेशन? यस सर। ठीक है, अब जस्ट सॉल्व थ्री इक्वेशन, तीनों को सॉल्व करना है। तीनों को इक्वेशन को आप सॉल्व करें और सॉल्व करके आप थीटा की वैल्यू निकालें। सर दो वैल्यूज आ रही हैं, एक π/6 और 5π/6। π/6 थीटा की वैल्यू। एक सेकेंड, हाँ मतलब सर रूट cos थीटा आ रहा है ±√3/2। नहीं, कुछ गड़बड़ बता रहे हो आप। अच्छा सर, सॉल्व करो या फिर करके देखना आप लोग घर पे, थीटा की वैल्यू निकालना। सर आंसर तो बता दो।
आंसर इसका अभी जब भेजूंगा ना तो ये लिख के भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स 2 आई थिंक ऐसे कुछ आता है इसका आंसर। ठीक है, चलें आगे बढ़ूं। चलिए कल की क्लास में ये सिर्फ ये यहां से पढ़ाऊंगा मैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और इसी को हम डिस्कस करेंगे। सब बैक कर दीजिए। हम्म। थैंक यू। खत्म हो गया सर क्लास? बेटा बता देता हूँ पहले मैं, तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, कल सभी लोग प्रेजेंट रहना। कल मतलब जो भी कल ही होगी मोस्ट प्रोबेबल क्लास शाम को, सेंटर ऑफ मास फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन, जो आप लोगों को ये सब बताता हूँ, लैब फ्रेम और ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्कैटरिंग वाले चैप्टर में। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कल, तो कल आप लोग जरूर रहना। और मोस्ट प्रोबेबल कल लंबी क्लास रख के आप लोगों का न्यूटोनियन खत्म करेंगे, जिसमें अभी थोड़ा सा ऑसिलेशंस वगैरह पढ़ाएंगे। उसके बाद परसों से आप लोगों की कोर क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इन सब विषयों पे। ओके सर, स्लाइड शो कर दीजिए सारी। चलिए स्लाइड शो कर देता हूँ, और बाकी जो लोग क्लास छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं आप। सर आपने जो बोट वाला एग्जांपल दिया था, इसमें आप ये तभी होगा ना सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, जब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तब सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सब लिखा तो इसी थ्योरी से भाई, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तभी तो ये सब बातें हैं, अदरवाइज ये सब बातें गड़बड़ा जाएंगी। यस सर। 15 नंबर स्लाइड देख लो। सर 19 बैक कर दीजिए। ओके सर। 21 खाली है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, कल अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।